तो मैं चाहता हूँ आज के स्पीकर जो हमारे कनाडा टोरंटो से हैं, मिस्टर रणवीर जी, मैं आपको रणवीर जी को बुलाना चाहूँगा। थैंक यू सो मच रणवीर जी हमारे साथ आज आप जुड़ने के लिए। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। Thank you, Vikash ji, for inviting me इस webinar पे. Now, uh, I'm a little nervous क्योंकि मैं विकास जी के जैसे हिंदी नहीं बोल सकता. मेरा हिंदी थोड़ा सा broken है. इंडिया में कहते हैं broken English, मैं broken हिंदी बोलता हूँ. पर मैं अपना best try करूँगा अपना story बताने के लिए, आज आप सबको inspire करने के लिए. और शुरू करने से पहले बहुत धन्यवाद for your time और ये opportunity अपनी story share करने के लिए. So मैं शुरू करूँगा अपनी स्टोरी बता के, और उस स्टोरी में मैं 4 एलिमेंट बताऊँगा which I think has been the key to our growth and success here in Canada and in other countries in North America. अभी इंडिया में तो इतना शुरू नहीं करा, पर मेरा विजन है eventually मैं इंडिया आके वहाँ भी शुरू कर सकता हूँ. पर एक स्टोरी होती है and it's called Acres of Diamonds. सुना हुआ होगा. There's a guy who he goes to a fortune teller, और उस fortune teller ने उसको बताता है you will find जो दुनिया में सबसे बड़ी gold की राशि है वो आपको मिलेगी. So he goes to he decides that he's going to leave everything, सब चीज छोड़ के, और he starts to go after this pursuit gold के लिए. So he leaves his house, अपना family छोड़ के, job छोड़ के, career छोड़ के अफ्रीका चला जाता है, क्योंकि कोई उसको बताता है अफ्रीका में बहुत बहुत गोल्ड है. तो उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी गोल्ड ढूंढने के लिए. उससे कुछ भी नहीं मिला एंड ही डाइड. और दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रश है उसकी अपनी बैकयार्ड कैलिफोर्निया में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है. तो लेसन ऑफ दिस स्टोरी इज, हम सब चाहते हो अगर मैं वहां जाऊंगा वहां सक्सेस होगा, ये होगा, पर हमारा जो सक्सेस है या हमारे ओन बैकयार्ड, हमारा ओन our own place we can build success. So I'm going to tell you how I started, like Mr. Bikash ji said, university ke baad, Indian, okay, we're told 3 things: lawyer, engineer, doctor. And us तीनों के बगैर we don't know any other career. However, जब मैं बच्चा होता था, when I used to see doctors, I wasn't that inspired. I was more inspired by business people. Like Mr. Bikash said, my heart was in business. So हर वक्त I was always looking for a business. Even in university, मैं चीजें चाइना से खरीद के बेचता था अपने dorm room में, स्कूल में बेचता था, high school में बेचता था. ऐसे मैंने small business शुरू करे थे, but I wanted a proper career. So I thought, okay, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, then I can make money, अपना क्लिनिक खोल सकता हूँ, हॉस्पिटल खोल सकता हूँ, और वो मेरा प्लान था. पर आइडियली मेरा मेन प्लान था बिजनेस. और मैं इतना फॉन्ड नहीं था मेडिकल स्कूल जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था 8 साल लगेंगे मेडिकल स्कूल के लिए. फिर मुझे अपना लोन सेव कर पे ऑफ करना पड़ेगा, और पैसे सेव करने पड़ेंगे बिजनेस को शुरू करने के लिए. So when I found Unicity, the thing that caught my attention was the products. The product caught my attention. Or was specific, जो भी अपना Clear Start, BioSlife, Matcha. When I saw these products, the things that stood out to me were research है, clinical studies है, Unicity Rexall होती थी, clinical studies by University of Sydney, Cleveland Clinic. These are big universities here in United States. So I thought, agar ye university is product pe study karenge and they've proven it, well, I'm going to try it. So I started the product on my dad, my father, mere nana ji और mere mama ji. So mere father ने पहले शुरू करा था. मेरे father insulin लेते हैं diabetes के कारण, and he's been taking since he's 40 years old. 200 यूनिट लेते थे दिन में. 3 हफ्ते BioSlife शुरू करके he went down to 10 units. That built my belief immediately. मेरे से यकीन नहीं हुआ that my father has been taking 200 unit of insulin. 3 हफ्ते में हमारे Unicity product use करके 10 यूनिट पे आ गए. फिर मेरे मामा जयपुर में रहते हैं, and I was born in Jaipur.
he's mentally challenged. He had meningitis हो गया था जब बच्चे थे. So he's a 49-year-old baby. उनको brain damage हो गया था. तो मेरे नाना नानी उसका ख्याल रखते हैं और पूरी टेक केयर करते हैं. सो जब मैं जयपुर गया था 4 साल पहले, मेरे मामा की डायबिटीज इतनी खराब हो गई थी, क्योंकि आप सब जानते हो इन वेबिनार पे हम लर्न करते हैं कार्ब्स के कारण, इंसुलिन के कारण, और हिंदू वेजिटेरियन डाइट के साथ हमारा पूरा डाइट 70 to 80% कार्ब्स है. वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, तो उसकी डायबिटीज बहुत खराब हो गई थी, और उसके पैर थोड़े से नीले होने लगे थे, और उसके लेग पे ऐसे एक वुंड हो गया था, एंड वो हील नहीं हो रहा था. तो डॉक्टर बता रहा था मेरे नाना को, अगर इसकी शुगर ठीक नहीं होगी और ये इन्फेक्शन शुरू हो गया, इसके पैर काटने पड़ेंगे. और आप सब जानते होंगे एम्पुटेशन का नंबर 1 कॉज है डायबिटीज. तो मैं इंडिया में था, और मैं अपने लिए अपना बायोस्लेव लाया था. तो मैं अपने बैलेंस इसको मेरे मामा को देने लग गया. 2 ब्रेकफास्ट के पहले, 2 लंच के पहले और 2 डिनर के पहले. ऑल्सो मॉर्निंग में मैंने कंप्लीट शुरू कर दिया, और लंच के बिटवीन ये नमकीन, चाय, बिस्किट सारे बंद करके माचा और कॉफी शुरू कर दिया इसके लिए. 3 हफ्ते के लिए मैं इंडिया में था. 2 दिन जाने से पहले मेरे नाना वापस मेरे मामा को डॉक्टर ले गए, और वापस आकर कहते हैं इसकी शुगर 20 से 6 पे आ गई है, इसके शुगर इंप्रूव हो रही है. जो भी ये तूने शुरू करा है, ऑर्डर कर, मैं इस पे कंटिन्यू करूंगा. 4 साल हो गए. मेरे मामा को कोई प्लेसिबो नहीं. अगर आप प्लेसिबो जानते हो, लोग कहते हैं ओ मुझे नहीं पता, अगर ये पी के मेरा दिमाग ठीक कर रहा है और ये प्रोडक्ट नहीं कर रहा है. इसका कोई प्लेसिबो नहीं है, क्योंकि इसको पता नहीं ये क्या ले रहा है. 4 साल में इसकी शुगर बिल्कुल ठीक हो गई है, और ये कोई एक्सरसाइज नहीं करता. हिंदू वेजिटेरियन डाइट, बस सुबह उठ के लाइफ फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम कंप्लीट, फिर लंच के पहले बैलेंस, डिनर के पहले बैलेंस, और बीच में माचा. और जब आप देखते हो इसको, जब ये माचा पीता है, इसको इतनी एनर्जी आती है, इतना खुश होता है. तो मेरी फैमिली की बिलीफ हो गई इस पे. फिर मेरे नाना को एक प्रॉब्लम हो गई थी, डाइजेशन प्रॉब्लम, पेट की कोई बीमारी हो गई थी. एक महीने में उन्होंने 20 पाउंड कम कर लिया. डॉक्टर डर रहा था, मेरे नानी को बता रहा था इसकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही, और मेरे नाना जी शायद ही माइट पास अवे अगर ये ठीक नहीं होते. तो हमने इनको भी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पे शुरू करा था, और 1 महीने के अंदर पूरी पेट की बीमारी ठीक हो गई. सो जब मैंने ये स्टोरी सुनी, मेरे दिमाग में आया, अगर ये प्रोडक्ट ऐसे करे मेरे फैमिली के लिए, और कितने फैमिली है पूरी दुनिया में who can benefit from Unicity products. That was my business opportunity. So सबसे पहली चीज I did was I made a commitment. आप ये लिखो, commitment. I made a complete commitment that मैं ये business करूंगा. Now मैंने तो पूरी commitment ले ली. I don't recommend आप सारे ये करो, पर मैंने अपनी वो मेड स्कूल भी छोड़ दिया. मेरी पूरी एक्सेप्टेंस थी. मेरे फैमिली कह रहे थे इसका दिमाग खराब हो गया, ये क्या बेचने लग गया, ये मेडिकल स्कूल छोड़ रहा है. पर मुझे पता था इनको नहीं समझे, मेरी फैमिली बिजनेस फैमिली की नहीं है, इनको ये प्रोडक्ट का साइंस नहीं पता. पर मुझे पता था, और मुझे पता था ये बिजनेस बन सकता है. ये साइंस सॉलिड है इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, इस कंपनी की ओनर कौन है. और मैंने पूरा कमिटमेंट ले लिया दैट आई एम गोइंग टू बिल्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप मैंने लिया इज कमिटमेंट. मैंने ये नहीं कहा ओ मैं 2 महीने के लिए करूंगा, और अगर ये काम करेगा अच्छा मैं करूंगा, अगर नहीं करेगा दैट्स इट. नो, आई मेड अ फुल कमिटमेंट. मैं करूंगा नो मैटर व्हाट. आई डिडंट मेक अ कमिटमेंट अगर 90 दिन में मैं करोड़पति बन जाऊं फिर ये बिजनेस ठीक है, अगर नहीं बन जाऊं फिर मैं नहीं करूंगा. नहीं, जब कोई डॉक्टर बनता है 3 महीने के लिए डॉक्टर बनता है, पूरी जिंदगी के लिए डॉक्टर बनता है, राइट? कोई करियर करता है, पूरी जिंदगी के लिए करियर करते हैं. पर लोग इस बिजनेस में आके कहते हैं अच्छा मैं 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए करूंगा और बस. नहीं, जब आप शुरू करोगे ये बिजनेस के लिए पूरा कमिटमेंट चाहिए. और ये बिजनेस नहीं चलेगा जैसे आप सोच रहे हो पहले में. हार्डशिप्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे. हर चीज में ये चैलेंजेस होते हैं. आप सोचो जो भी आपने कामयाब करे अपनी जिंदगी में, चैलेंजेस क्या आए थे उस गोल में. चैलेंजेस यहाँ भी आएंगे.
पर आपको 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 सेकंड चीज चाहिए which is आपको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। इस बिजनेस में बहुत जरूरी है that we lead by example. You know, पहले 2 साल I struggled a lot with this business क्योंकि मुझे एग्जाम्पल का पता नहीं था। I thought okay, मैं दूसरों को बताऊंगा क्या करने के लिए, पर कोई I can do whatever I want. नहीं, लोग आपको देख रहे हैं, वो नहीं करेंगे जो आप बोल रहे हो, वो करेंगे जो आप कर रहे हो, और वो आपको देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आप कैसे बोलते हो, आप कैसे ड्रेस अप करते हो, आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हो, आप कैसे लगते हो। और मैं नहीं कह रहा आपको बॉडी बिल्डर ऋतिक रोशन जैसे लगना पड़ेगा, पर अपनी सेहत का ख्याल रखो। दो मॉर्निंग सुबह उठ के कंप्लीट के साथ शुरू करो, नॉट विद cereal or poa or puri, aloo puri. हाँ, you can do once in a while, but you have to be the example. Example with the product. ये बिजनेस नहीं चलेगा अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं ले रहे और आप दूसरों को कह रहे हो ले रहे हो, क्योंकि वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं अच्छा अगर ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है पर ये बंदा क्यों नहीं अच्छा लग रहा। सोच रहे आपको नहीं बताएंगे पर लोग सोचते हैं। सो सबसे पहली चीज एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल। सेकंड चीज you have to be the example for your family. अपने फैमिली के लिए एग्जाम्पल बनो। हर हम देखते हैं, स्पेशली पेरेंट्स को देखते हैं, हर वक्त वो अपने बच्चे को बोलते रहते हैं ये करो वो करो वो करो, और बच्चा अपने मम्मी डैडी को देख रहा है और सोच रहा है मेरे मम्मी डैडी नहीं करे, मैं क्यों करूं। सेम चीज हमारे टीम में, सेम चीज हमारे कस्टमर्स में, सेम चीज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनर्स में, वो देख रहे हैं ये क्या कर रहा है और ये मुझे क्या बता रहा है। तो हर वक्त अपने आप को शीशा में देखो और पूछो आज मैंने जो करा वो मैं उस लीडर को फॉलो करूंगा या नहीं। या आप समटाइम्स बैलेंस ले रहे हो, एक महीना आप ऑर्डर भी नहीं कर रहे प्रोडक्ट, आप अपनी सेहत के ख्याल नहीं रख रहे, आप लोगों के साथ बात नहीं कर रहे। आपको अपना एग्जाम्पल बनना पड़ेगा और अपनी एग्जाम्पल के साथ आपकी टीम शुरू होगी ग्रोइंग करने के लिए, और आपकी फैमिली भी आपको रिस्पेक्ट करेगी। Number 3 cheese. Number 1 was commitment. Number 2 was example. Number 3 was integrity. Integrity इतनी important चीज है इस बिजनेस में, क्योंकि इस बिजनेस में आप लोगों को हायर नहीं कर रहे हो और उनको और उनके अंदर डर नहीं है अगर मैं ये काम नहीं करूंगा मैं फायर हो जाऊंगा। वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो आपके अंदर ट्रस्ट रख रहे हैं। अगर मैं इस पर्सन को फॉलो करूंगा मैं भी अपना गोल मैं कामयाब हो जाऊंगा अपने गोल में। पर आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटेग्रिटी रखने के लिए। आप करते हो जो आप बोलते हो, आप फिनिश करते हो जो आप स्टार्ट करते हो, आप रिस्पेक्टफुली लोगों से बात करते हो, और आप लोगों को पीपल जैसे देखते। डू यू सी पीपल एज पीपल? अपने स्टुअर्ट ह्यूज सीईओ ऑफ यूनिसिटी बोलते हैं हर ऑल द टाइम इन द ट्रेनिंग्स, डू वी सी पीपल एज पीपल? और हम लोग को देखते हैं ऐसा, ओ ये अगर ये आ गया मेरे बिजनेस में, ये मुझे बहुत पैसा बनाएगा। अगर ये तो कुछ काम नहीं कर रहा, मैं इसके साथ अब बात नहीं करूंगा। नहीं, वी हैव टू सी पीपल एज पीपल, और ये सबसे बड़ी इंटेग्रिटी चीज है। तो पहली चीज कमिटमेंट। मैंने कमिटमेंट बनाया, ये मैं बिजनेस करूंगा नो मैटर व्हाट। मैं हर वक्त लोगों को बोलता हूँ आई एम क्लाइंबिंग अप माउंटेन ऑफ यूनिसिटी, आई एम गोइंग टू द टॉप और आई एम डाइंग हाफ वे, आई एम नॉट गोइंग डाउन। I'm climbing the mountain of unicity. I'm going to the top no matter what. And जब आप ये commitment बनाते हो, you are 100% going to achieve your goal. Number 2, example. You have to be the example. Number 3, integrity. और number 4 जो सबसे जरूरी चीज है, all 4 are जरूरी, but number 4 is so important क्योंकि मैं देखता हूँ इस business में लोग करते नहीं, they treat this business like a lottery ticket. सोचते अच्छा मैंने एक बैलेंस और क्लियर स्टार्ट को खरीद लिया, अच्छा शुरू कर लिया बिजनेस, and they put that commitment towards it. No, you have to commit to it, and you have to commit to build your knowledge, attitude and skills. तो अगर आप ट्रायंगल को सोचो, अपने दिमाग में देखो, you see a triangle, और यहाँ है knowledge, और यहाँ है attitude, और यहाँ है skills. अब पूछो कौन सा वाला सबसे जरूरी है इस बिजनेस के लिए? नॉलेज
एटीट्यूड या स्किल्स? और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप क्रिकेट प्लेयर को सोचो आपको क्रिकेट खेलना है और आपको टीम इंडिया ज्वाइन करना है, और आपकी नॉलेज सबसे बढ़िया है और आपका एटीट्यूड अमेजिंग है, आप बिलीव करते हो मैं क्रिकेट जीतूंगा, मैं कामयाब होऊंगा, पर आपके स्किल्स बिल्कुल नहीं है, आप टीम इंडिया ज्वाइन कर सकते हो? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सेम चीज इज बिजनेस में, आपको नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स हर तीनों पे वर्क करना होगा एवरी सिंगल डे, especially in your first 2 years. You have to continue to build your knowledge, your attitude, your skills. और knowledge में ये चीजें has helped me become successful is this. Knowledge, सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट नॉलेज नहीं, पर द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोडक्ट। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, स्पेशली हमारे इंडियन कम्युनिटी, जो भी चैलेंजेस इंडिया में हैं, मेरे सेम चैलेंजेस हमारे इंडियन कम्युनिटी या कनाडा और यूएस में भी है टू। द माइंडसेट बिल्कुल सेम है। एक्चुअली इंडिया का माइंडसेट बेटर है, क्योंकि जो यहाँ आते हैं कनाडा और यूएस में, उनका माइंडसेट स्टक हुआ है 1980 1990 से। इंडिया का माइंडसेट अब एडवांस्ड हो गया 2020 पे, पर यहाँ जो इंडियंस हैं इनका माइंडसेट स्टक हुआ है, तो मुझे उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और जब मैं प्रोडक्ट के बाद बताता हूँ, सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे कम्युनिटी में, मुझे पता है, लोग कहते हैं ओ मुझे ये प्रोडक्ट नहीं है, मैं सिर्फ नेचुरल खाना खाना चाहता हूँ, नेचुरल टेस्ट चाहिए, मुझे ये केमिकल नहीं। आपने सुना होगा, मैं अपने अपने इंडियन से, वो मुझे बोलते हैं, और मैं पूछा अच्छा ये जो आप ब्रेड खा रहे हो या भुजिया खा रहे हो, ये कौन से पेड़ पे ग्रो हुआ है? ये कहाँ से नेचुरल हुआ है? लोग सोचते नहीं, बस बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मम्मी डैडी को देखा एक चीज करने से, सो उनको उनकी माइंडसेट में ये नॉर्मल हो गया है। सो सबसे बड़ी चीज मैं फर्स्ट एजुकेट करता हूँ, इस लोगों को सप्लीमेंट क्यों चाहिए, क्यों सप्लीमेंट की जरूरत है इस जमाने में, क्यों लोगों को सप्लीमेंट चाहिए। और अगर आप आप देखो हमारा फूड क्वालिटी, हमारा मीट क्वालिटी, हमारे जो फिश है उनको कॉर्न देते हैं, चिकन को कॉर्न देते हैं, गोट को कॉर्न देते हैं, हमारे जो फ्रूट है बड़े हो रहे हैं और उनको बड़े बना रहे हैं, क्योंकि सब्जी वाला वेट पे पैसे बनाता है। और ये सिर्फ है हमारा मीट और फ्रूट और वेजिटेबल, पर मोस्ट लोग तो ये खा भी नहीं रहे। लोग क्या खा रहे हैं? चिप्स, ब्रेड, पेस्ट्रीज, प्रोसेस्ड फूड, कोई प्रोटीन नहीं, कोई फाइबर नहीं। और इसके साथ अगर लोग इस एनवायरनमेंट में डिपेंड करेंगे, फिर उनको बीमारी होगी। इसलिए हमारे प्रोडक्ट के साथ ये लोगों को इजी बनाता है हेल्थी बनाने के लिए। पहली चीज इज एजुकेट, फिर मैं प्रोडक्ट के बात बताता हूँ, और ये मेरा नॉलेज है। सेम चीज हमारे बिजनेस में, और मेरा बिजनेस मेरा फिलॉसफी अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा मैं कैसे बिल्ड करता हूँ, और मेरा प्रोसेस क्या है। और मैं ये बताना चाहूंगा, आई यूज द मैकडॉनल्ड्स एनालॉजी। सो आप सब मैकडॉनल्ड्स को जानते हो। मैकडॉनल्ड्स जो बिजनेस है, हम आज देखते हैं कितना sells billions of dollars of burgers। पर जब मैकडॉनल्ड्स पहले शुरू हुआ था, it was a small business। जो फाउंडर था मैकडॉनल्ड्स, मिस्टर रे क्रॉक, आपने नाम सुना होगा। और आज हम सब मिस्टर रे क्रॉक का नाम सुनते हैं, we're inspired by a story। पर कोई nobody talks about a story। जब इसने मैकडॉनल्ड्स पहले शुरू करता, ये क्या करता था? फ्लोर को सफाई करता था, बर्गर बनाता था, कस्टमर को सर्व करता था। उसने सबसे पहला अपने रेस्टोरेंट को शुरू करा, अपनी सिंगल लोकेशन को शुरू करके प्रॉफिटेबल बनाया। तो ये हमारे बिजनेस में कैसे अप्लाई होता है? आपको जब आप पहले शुरू, और ये मेरी फिलॉसफी है, आपको फॉलो नहीं करना पड़ा, यू डोंट हैव टू लिसन टू योर अपलाइन, पर ये मेरी फिलॉसफी है। इसमें अपने टीम को सिखाता हूँ, पहले अपना रेस्टोरेंट शुरू करो, पहले अपने आप को अपना नंबर 1 कस्टमर बनाओ, और थोड़े से कस्टमर लाओ, और सीखो कस्टमर कैसे लाने के लिए। क्योंकि जो मिस्टर रे क्रॉक ने करा, वो उसने करा जो लोगों को करना नहीं है। फ्लोर को साफ करना, बर्गर को बनाना, बर्गर को लाने, लोगों से बात करना, कस्टमर को सर्व करना। कोई ये बात अब बोलता नहीं जो मिस्टर रे क्रॉक करता था। हमारे बिजनेस में लोगों को एक माचा नहीं बेचना, एक सुपर ग्रीन नहीं बेचना, और या ओ मैं जब मैंने शुरू करा बिजनेस में, लोगों को
बैलेंस का आधा डब्बा ब्रेक करके लोगों को बेचता था, क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए था उनको प्रोडक्ट दो, उनको रिजल्ट आएंगे और ये कंटिन्यू करेंगे। पर लोग कहते नहीं भाई इसमें तो पैसे नहीं है, ये पैसे नहीं बनेगा, इट्स नॉट वर्थ माय टाइम। पर आप लोग समझते नहीं ये बिजनेस है और बिगिनिंग में हमको टाइम डालना पड़ता है ज्यादा, जो जिससे पैसे मिलेंगे नहीं अभी बिगिनिंग में, पर पैसे एक्यूमुलेट होते हैं जैसे बिजनेस में होते हैं। सो जब आप अपना रेस्टोरेंट बना लोगे और फिर आपके थोड़े से कस्टमर आएंगे, और न्यू यूनिसिटी ग्लोबल प्लान में मैं अपने टीम को सिखाता हूँ बिल्ड टू मैनेजर विद कस्टमर्स। कोई रिक्रूटिंग की अभी तक जरूरत नहीं है until you build to manager. Now this is my philosophy, आपको follow नहीं करना you don't have to follow this, listen to your upline, but this is my philosophy, build to manager with customers. जब मैं उसको अब मैनेजर, now once he or she has achieved manager with customers, उनका रेस्टोरेंट अब बन गया। now वो फ्रेंचाइज कर सकते हैं सेम बिजनेस को और दूसरे को सिखा सकते हैं कस्टमर कैसे लाने के लिए, और फिर वो सीनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, डायरेक्टर पे रीच कर सकते हैं। पर सबसे पहली चीज आपको आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे किस तरह का रेस्टोरेंट बनाना है, मुझे कौन से प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं, ये आपका बिजनेस है। अगर मैं इंडिया में होता अभी मैं प्रमोट करता वो नया एलसी बेस सिस्टम, क्लियर स्टार्ट, बैलेंस, माचा, बायोस लाइफ, प्रोटीन और कॉफी, ये चीजें भी, पर दोज आर द की प्रोडक्ट्स दैट आर पैटेंटेड बाय यूनिसिटी। एंड सो लोग यहाँ भी मेरे बहुत ऑब्स्टिकल होती है जो इंडिया में हो गए, लोग कहते हैं ओ भाई ये तो प्रोडक्ट तो बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं चाहिए, ओ मैं नहीं बेच सकता, ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, ये ओ मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है। इंडिया में आपने देखा होगा सबसे नंबर 1 फोन है एप्पल, द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन। अगर आप देखो मैं जब इंडिया गया था, इफ यू गो टू मैकडॉनल्ड्स, एक मैकडॉनल्ड्स मील इंडिया में 300 से 500 रुपए के मिलता है। स्टारबक्स, अगर आप स्टारबक्स जाओ इंडिया में, एक कॉफी मिलती है 285 to 400 रुपीस। एक कॉफी बंदा खरीदता है 350 रुपए के लिए, और हम बेच रहे कंप्लीट 60 रुपीस का, माचा 100 रुपीस का, बायोस लाइफ 60 to 90 रुपीस का, हमारा कॉफी 30 रुपीस का, और हम अपोलोजाइज करें ओ सॉरी ये प्रोडक्ट महंगा है। ये हमारा माइंड सेट है, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे लोगों को, लोगों मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स और इन चीजों से खरीदेंगे और वो कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाएंगे और हमारा कुछ नहीं बनेगा। तो ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब जो सबसे बड़ी कंपनियां इस दुनिया में वो सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट नहीं बेचते। एप्पल को देख लो, नंबर 1 इस वीकेंड हो गया, टेस्ला नंबर 1 कार कंपनी इन द वर्ल्ड, वो सबसे महंगी गाड़ी है। इट्स प्रोडक्ट्स दैट चेंज द वर्ल्ड, cheap products don't change the world, products that work change the world. So that's the knowledge, the attitude, the skills. So मैंने शुरू करा commitment, 2 example, 3 integrity, and 4 अपना cash, KASH triangle, knowledge, attitude, skills. अब मैं end करूंगा on the why I chose this Unicity business, 7 reasons और मैंने इस business को क्यों choose करा। सबसे पहली चीज trends, market trends। अगर हम देखें अगले 10 साल में दुनिया कहाँ जा रही है, it's going towards wellness. इंडिया में अभी तो फिटनेस बूम हो रहा है, या तो बूम हुआ हुआ है पिछले 20 साल के लिए, इंडिया में बूम हो रहा है, क्योंकि हर अगर आप बॉलीवुड एक्टर को देखो उनके एब्स है, नाइस बॉडी बनी हुई है, और वो और लोगों को अब वो चाहिए, they're getting into fitness, they're getting into health। लोगों को पता लग रहा है हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, we have to take care of it, तो ये ग्रो हो रहा है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में अभी है प्रोटीन डिफिशिएंसी। मैं यहाँ वाले इंडियन को हर वक्त बताता हूँ इंडिया का स्टेटिस्टिक्स, अब इंडिया में क्या हो रहा है प्रोटीन डिफिशिएंसी के साथ, 80% इंडिया प्रोटीन डिफिशिएंट है, और हमारे पास कंप्लीट है और बेस है जो लोगों की प्रॉब्लम सेव कर सकती है। So number 1 is trends in food quality। हमारा food क्वालिटी नीचे जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ हमारे विटामिन्स और मिनरल्स निकल रहे हैं फूड से, प्रोटीन कम हो रहा है, हमारे प्रोसेस फूड ज्यादा हो रहा है, और that's the first thing is trends in healthcare and food quality। एक और चीज, इंडिया में अभी 75 million diabetics हैं, कह रहे हैं by 2030 500 million diabetics होंगे इंडिया में। Number 2 trend I look at is aging population। Population age हो रही है, पर
उनको बीमारी हो रही है क्योंकि लोग जब 400-500 साल पहले लोग तो 30 साल पे मर जाते थे, डायरिया, बैक्टीरिया, वायरस लग जाता एंड दे यूज्ड टू डाई। अब मेडिकल सिस्टम ने वो ठीक कर दिया, हमारी एक्सटेंशन कर दी लाइफ की, पर अब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो रही है, तो लोगों को सप्लीमेंट्स चाहिए क्योंकि हमारा खाना नहीं दे रहा उनको। और यंग पीपल मेरे एज भी 30 साल के आर गेटिंग वेरी सिक टू, उनको मोटापा की प्रॉब्लम, एनर्जी की प्रॉब्लम, पेट की बीमारी, ये सारी चीजें हो रही है। तो वो दोनों यंग पॉपुलेशन एंड एजिंग पॉपुलेशन को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 3, हमारे पास पैटेंटेड यूनिक प्रोडक्ट्स है। बहुत बारी हुआ है जो लोग हमारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ये बैलेंस शुरू कर लेते हैं एंड देन कहते हैं अच्छा मैं ऐसा बोल शुरू कर लूंगा, वो सस्ता है। 6 महीने बाद वापस आ जाते हैं क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट पैटेंटेड है। वो इसकबोल कुछ भी नहीं कर सकता जो ये कर सकता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स यूनिक और पैटेंटेड है, और कहीं और नहीं मिल सकते। वॉलमार्ट, अमेजॉन, कॉस्को, ये कोई कहीं नहीं मिल सकते। हमारे प्रोडक्ट्स यूनिक है, पैटेंटेड है और यूनिसिटी के साथ पैटेंटेड है। हम कोई पैटेंट दूसरी कंपनी से नहीं खरीद रहे, हमारे ओन पैटेंट है। तो हमारा यूनिक प्रोपोजिशन ये है। तो ट्रेंड्स, एजिंग पॉपुलेशन, पैटेंटेड यूनिक प्रोडक्ट्स। नंबर 4, अफोर्डेबल। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लोग स्पेंड करें 500 रुपए मैकडॉनल्ड्स में, 200-400 रुपीज इन स्टारबक्स। हमारे प्रोडक्ट्स इन कंपनी से अफोर्डेबल है। अगर स्टारबक्स इस पिछले साल 21 बिलियन यूएस डॉलर्स बना सकता है, हम 21 मिलियन ईच डिस्ट्रीब्यूटर हियर बना सकते हैं हमारे बिजनेस में। नंबर 6, हमारा सीईओ स्टुअर्ट ह्यूज। हमारा जो सीईओ है, इतना यूनिक स्टोरी है उसकी इस इंडस्ट्री में। अब हमारा जो सीईओ, नॉट ओनली वो इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर होता था, पर उसने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी बहुत सक्सेस और कामयाबी करी। He was one of the top 5 Wall Street guys in 1980s. So he had the financial background, then आके डिस्ट्रीब्यूटर बना इस बिजनेस में जो हम सब कर रहे हैं। और इस बिजनेस में उन्होंने 100 मिलियन पॉइंट्स ओवी बिजनेस बनाया इन द 90s। और फिर उन्होंने ये कंपनी खरीदी एंड he's built this business to build the people। तो यूनिवर्सिटी ये सपोर्ट देती है, यूनिवर्सिटी बिजनेस ट्रेनिंग, डेल कार्नेगी, ये सारी जो चीजें देती है, इट्स बिकॉज ऑफ मिस्टर स्टुअर्ट ह्यूज एंड द कंपनी इज कंप्लीटली डेट फ्री। दैट इज ये जो इस जमाने में विद कोविड-19 जो सब कंपनियों को हो रहा है, वो सारे खत्म हो रहे हैं, गोइंग इन बैंक्रप्सी, यूनिवर्सिटी कामयाब हो रहा है बिकॉज वी आर डेट फ्री एंड बिकॉज ऑफ आवर बिजनेस मॉडल, व्हिच इज द नंबर 6 is our business model allows people to grow word of mouth। We grow word of mouth। कंपनी एडवर्टाइज नहीं करती, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करती, हम वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो करते हैं और हमको ये पैसे मिलते हैं रेजिडुअली। इंडिया में आपने सुना होगा ऊबर, जब ऊबर ने शुरू करा, ऊबर लोगों को एक कोड देती थी। ऊबर कहती है अपने दोस्त को कोड दो, वो दोस्त को $5 मिलेगा और आपको $5 मिलेगा। इंडिया में भी सेम चीज हुआ होगा। पर अगर मेरे दोस्त को ऊबर पसंद है और वो हर वक्त यूज करता रहेगा, मुझे अब कुछ नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी आपको पैसे देती है फॉर लाइफ, और अगर उसने किसी दोस्त को दिया, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि उसने काम करा, पर आपको भी थोड़े से पैसे मिलेंगे। तो ऐसे you're able to build a massive passive income where हमारे जो प्रोडक्ट है people use over and over and over and over। and the most important thing is business के साथ, we have no overhead। हम कितना देखते हैं लोगों के जो बिजनेस है और उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है क्योंकि they're always stuck to the business। फैमिली के साथ कोई टाइम नहीं है, हेल्थ खत्म हो जाती है, headaches, stress। what is the point of this if you can't live your life? हमारे बिजनेस के साथ Unicity takes care of all the headache। The headache we have is to be the example and make the commitment। that is the only headache we have। so I hope those are the reasons of why I chose this Unicity business। and I want to leave you with this। जो भी आप चैलेंज इंडिया में देख रहे हो, वही चैलेंज मेरे यहाँ कनाडा में है too। और 80% मेरा ग्रुप इंडियन है यहाँ कनाडा में। और पर I changed my mindset, I changed my knowledge, my attitude, my skills। Einstein ने एक चीज बोली है, the person उसने बोला I am not genius। Einstein जिसने लाइट बल्ब बनाया, I am not genius, I just stuck with problems longer। Again,
I am not smarter than anyone. I just stuck with the problem longer. तो जो भी प्रॉब्लम आप अपनी बिजनेस में देख रहे हो, लोग यूज नहीं कर रहे, लोगों को एजुकेशन नहीं है, लोग कह रहे नहीं ये बहुत महंगा, जो भी प्रॉब्लम आप अपने दिमाग में बोल रहे हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्विट नहीं करो. अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, you will succeed. And with that, that comes with the commitment. You know, मैं जब ये बिजनेस करता हूँ, हर वक्त मैं सोचता हूँ मेरी फैमिली क्या सोच रही है जब ये मुझे देख रहे हैं बिजनेस करने में. अगर आप ये शुरू करोगे और क्विट करोगे, आपके बच्चे क्या सोचेंगे? और आप अपने बच्चे को बोल रहे हो, ओ बेटा ये बन जा, डॉक्टर बन जा, लॉयर बन जा, पर वो अपने मम्मी डैडी को देख रहे हो और कह रहे हो ये इन्होंने तो कुछ शुरू करा था और दे क्विट. क्योंकि लोग हमको देखते हैं हर वक्त, व्हाट आर वी डूइंग. और मैं ये क्विट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फैमिली मुझे देख रही है और ये देख रहे हैं अच्छा इसने ये शुरू करा, अब ये क्या करेगा. इसलिए आज हर मेंबर मेरे फैमिली में यूनिसिटी प्रोडक्ट यूज करते हैं. हाँ, मेरे फैमिली में अकेले हम ओवर 1000 पीवी करते हैं, पर जब मैंने शुरू करा कोई नहीं यूज कर रहा था. मेरे फैमिली सोच रहे थे मेरा दिमाग खराब है, मैं क्या पाउडर पी रहा हूँ. पर मेरे एग्जाम्पल के साथ और मेरी कमिटमेंट के साथ और मेरा कंसिस्टेंसी के साथ ओवर टाइम, कई ऑफ माय फैमिली मेंबर्स 3 साल के लिए दे डिडंट यूज नथिंग, पर मैंने ये बिजनेस छोड़ तो नहीं दिया, वो मेरी मौसी ने यूज करी, ये बिजनेस नहीं चलता. नो, आई कमिटेड टू इट. एंड व्हाट आई वांट टू लीव यू विद इज बिल्ड दिस फॉर योर फैमिली. अपने फैमिली के लिए बिल्ड करो. आपकी फैमिली आपको देख रही है, वो देख रही है आप क्या कर रहे हो. आप अपनी फैमिली को फोन करके बोल रहे हो अच्छा ये प्रोडक्ट यूज करो, और 6 महीने बाद अगर आपने यूज करे, ये आपकी रेपुटेशन को हर्ट करेगा. लोग रिस्पेक्ट करते हैं जो लोगों के पास कमिटमेंट होती है और डिजायर होती है, और वो लीड बाय एग्जांपल करते हैं. So with that being said, Unicity, it's the best time to be with Unicity right now. Is COVID-19 के कारण we've had these amazing things like these webinars, these Zoom calls. मैं यहाँ कनाडा से बैठ के आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ और थोड़े से माइंडसेट टिप्स शेयर कर रहा हूँ. और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ COVID-19. हम अब अडेप्ट कर रहे हैं, और ये ब्यूटी है इस बिजनेस मॉडल के साथ. ये बिजनेस मॉडल 1950 में शुरू हुआ था, जब सोशल मीडिया नहीं था, लोगों ने अडेप्ट करा. फिर इंटरनेट आ गया, लोगों ने अडेप्ट करा. फिर सोशल मीडिया आ गया, फिर लोगों ने अडेप्ट करा. अब कोविड-19 आ गया, लोगों अडेप्ट करे, क्योंकि जो पावर ऑफ द पीपल है वो टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती. और हमारा जो बिजनेस है, इट रिलाइज ऑन द पावर ऑफ द पीपल. और इंडिया में तो 1.6 बिलियन पीपल है. आपके पास इतने पोटेंशियल है, इतना पावर है. दिस वेबिनार कैन इजीली, इस वेबिनार पे 3000-4000 लोग आ सकते हैं हर हफ्ते. So with that being said, thank you, Mr. Bakash, for giving me the time, and I hope I shared some inspiration with Unicity India Group. और एक दिन मैं इंडिया आके वहाँ भी शुरू करूँगा once I become a diamond here in Canada.